ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उस नाम से आप सभी को हम बधाई देते हैं. போராடவா என்கிற தலைப்பின் அடிப்படையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம். आज के दिन में आपके बीच में बताने वाले वो जो बात है, वचन है, उसका हम हेडिंग देते हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ. பாயிண்ட் நம்பர் 1. पहले पॉइंट 1 தீமோத்தேயு முதலாம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். पहले तीमुथियुस की किताब में पहला अध्याय में 18वां वचन को पढ़ते हुए सुनेंगे. குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவே, குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவே, உன்னை குறித்து முன் உண்டான தீர்க்க தரிசனங்களின்படியே நீ அவைகளை முன்னிட்டு நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி आज के यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हारे बारे में जो वचन में लिखा हुआ था, भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवक्ता की बातों को बताए थे, उस बात को पूरा करने के लिए एक अच्छा संघर्ष करना जरूरी है करके बताते हैं. பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதுகிறார். पौलुस जो तीमुथियुस को इस तरह से बताते हैं, தீமோத்தேயுவே, நீ அசதியா இருந்து விடாதே, உன்னை பற்றி अनेक தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு. ये तीमुथियुस, तेरे बारे में बहुत ही भविष्यवक्ता है, इसलिए तुम्हें एकदम ऐसे ही मतलब तुम्हें रहना नहीं चाहिए. அவைகளின் நிமித்தம் நீ நல்ல போராட்டம் போராடு என்று சொல்கிறார். इसलिए उनको बताते हैं कि बहुत अच्छी तरह से तुम्हें संघर्ष करना जरूरी है. நம்மை குறித்தும் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் अनेक தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு. हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा भविष्यवक्ता की बातें लिखा हुआ है. அதை குறித்து நாம் நல்ல போராட்டம் பண்ண ஆண்டவர் நம்மை தட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார். आज के दिन में भी प्यारे प्रभु अपने सामर्थ्य को हमारे ऊपर उंडेलना चाहते हैं, ताकि आप भी उनके काम में संघर्ष करने के लिए उपयोग हो जाएं. நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்பது நம்மை குறித்த தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன வசனம். भविष्यवक्ता में इस तरह से लिखा हुआ है कि तुम जो है इस संसार के लिए एक रोशनी जैसे है. நீங்கள் இந்த பூமியில் உள்ள மக்களுக்கு उप्पाய் இருக்கிறீர்கள் என்பது நம்மை குறித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் தீர்க்க தரிசன வசனம். यीशु मसीह एक और भविष्यवक्ता को इस तरह से बताते हैं कि तुम इस सब इन लोगों के सामने इस संसार में एक नमक जैसा है. இப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனங்கள் நம்மை நிறைவேறுவதற்கு நமக்கு தேவை ஒரு போராட்டம். आज ये सारे भविष्यवक्ता हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारे अंदर एक संघर्ष होना जरूरी है. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல எவ்வளவு மக்கள் பாவ இருளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே. प्यारे प्रभु, इस संसार में तो कई लोग पाप में डूबे हुए हैं. என்னை வெளிச்சம் என்று நீ சொல்லி இருக்கிறதே, நான் வெளிச்சமாக மாற எனக்கு கிருபை தாரும் என்று போராட வேண்டும். प्रभु से इस तरह से हमें विनती करना चाहिए, एक संघर्ष में तो अपने मन में लेना चाहिए कि इस संसार के सारे जो पाप में डूबे हुए हैं, उनके सामने एक रोशनी बनकर मैं जीऊं. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல எவ்வளவு மக்கள் உப்பாகிய ரட்சிப்பு தன்மை இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே. हे प्रभु, एक नमक का जो काम है, वो काम के बिना इस संसार में कई लोग हैं. என்னை உப்பு என்று நீ தீர்க்க தரிசனமாக என்னை குறித்து முன் சொல்லி இருக்கிறீரே. इस संसार के लिए अब एक अच्छा नमक हो करके अपने भविष्यवक्ता बताए हैं. உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் அபிஷேகத்தினால் நான் உப்பிடப்பட வேண்டுமே. आपके प्रशंसा से और आपके अभिषेक से मुझे अब अपने मतलब भरना जरूरी है. நான் போதிக்கிற பொழுது உப்புத்தன்மையாகிய சாரமுள்ள ரட்சிப்பு என் மூலம் अनेक மக்களுக்கு வெளிப்பட வேண்டுமே. अब मैं जब प्रचार करता हूं तो उस समय पर मेरे प्रचार के अंदर एक नमक का वो जो काम है वो होना चाहिए. என்று நாம் தேவ சமூகத்திலே போராடுகிற பொழுது, ऐसे जब हम संघर्ष करके उनके काम में आगे बढ़ेंगे तो நம்மை குறித்து முன் உண்டான தீர்க்க தரிசனங்கள் நம்முடைய வாழ்விலே நிறைவேறிவிடும். हमारे बारे में जो भविष्यवक्ता लिखा हुआ है वो भविष्यवक्ता पूरा हो जाएगा. पॉइंट नंबर 2. दूसरा पॉइंट 1 तीमोथेयु 6:12. पहले तीमुथियुस में 6वां अध्याय में 12वां वचन को पढ़ेंगे. 1 तीमोथेयु 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். पहले तीमुथियुस में 6वां अध्याय में 12वां वचन को पढ़ता हुआ सुनेंगे. விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு. விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு.
நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள். நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள். அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய். போதும், அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய். यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ कि विश्वास की जो तुम्हारा दौड़ है उसमें एक अच्छा संघर्ष तुम अपने आप में लेना चाहिए और जो नित्य जीवन को लेने के लिए तुम्हें बुलाए हैं प्रभु ने, इसलिए उसमें भी बहुत एकदम चेतावनी के साथ रहना जरूरी है। பரிசுத்த ஆவியானவர் தீமோத்தேயுவுக்கு இந்த கட்டளையை கொடுத்தார். पवित्र आत्मा ने तीमुथियुस को इस आज्ञा को बताए थे। தீமோத்தேயுவே, விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டம் பண்ணு. हे तीमुथियुस, तुम विश्वास में एक अच्छा संघर्ष लेकर के चलो। நித்திய ஜீவனை நீ பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய். अनंत जीवन को तुम्हें पकड़ करके चलना चाहिए, ये तुम इस काम के लिए बुलाए गए हो करके वो बताते हैं। சில வேளைகளிலே நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்யாமல் இருக்கலாம். हो सकता है कि हम अपने मन में जो बातें सोचते हैं और जो काम को सोचते हैं वो अपने नहीं हो रहा होगा। சில காரியங்களுக்காக தேவ சமூகத்திலே நாம் ஜெபித்தும் நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியத்திலே அற்புதத்தை பெறாமல் நாம் இருக்கலாம். कुछ बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं लेकिन वो प्रार्थना को हमारे प्रभु सुनते नहीं, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। உடனே இயேசு வேண்டாம், சபை வேண்டாம், ஜெபம் வேண்டாம் என்று இயேசு விட்டுவிட்டு நாம் ஓடிவிடக் கூடாது. इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कलीसिया जाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं करके ऐसे छोड़कर नहीं चलना चाहिए। என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சில ஆசீர்வாதங்கள் தடைபட்டாலும் நான் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நிற்பேன். मैं जो है मेरे जीवन में चाहे मैं प्रार्थना करता हूं तो वो बात नहीं हो रहा है तो भी मेरे विश्वास में एकदम टिक कर बने रहूंगा करके अपने मन में सोचना चाहिए। சில நன்மைகளை நான் இழந்து போகக்கூடிய சூழல் இருந்தாலும் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற அந்த விசுவாசத்திலிருந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன். मैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा हूं उस विश्वास से मैं पीछे नहीं हटूंगा ताकि कोई भी मेरे जीवन में कमी हो जाए तभी। என்று விசுவாசத்தில் நாம் நல்ல போராட்டம் போராட ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். एक अच्छा संघर्ष आपके जीवन में होना चाहिए ताकि आप अपने विश्वास में अच्छी तरह से युद्ध करके आगे बढ़ सकें। ஆண்டவர் நமக்கு தந்தாலும் தரவில்லை என்றாலும் அவரை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். அதுதான் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டம். विश्वास में एक अच्छा संघर्ष यही है कि आप चाहे जो चाहते हो वो बात आपको मिले या ना मिले, उसके बावजूद उनके ऊपर, प्रभु के ऊपर जो विश्वास करते हो वही है। அப்படி இயேசுவை நாம் விசுவாசித்து பற்றிக் கொள்ளுகிற பொழுது நமக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கிறது. यीशु मसीह को हम पकड़ करके आगे चलेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। இப்படி இயேசுவை விசுவாசித்து நித்திய ஜீவனை பெறவே ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ऐसे जो है यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को रख करके अनंत जीवन को आप पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। நாம் கண்களை மூடுவோம், हम ஜெபம் अपने आंखों को செய்வோம். बंद करके प्रार्थना करेंगे। கர்த்தராகிய இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हे प्यारे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो, स्तुति हो। நான் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டம் போராட என்னை அழைத்திருக்கிறீர், உமக்கு நன்றி. हे प्रभु, मुझे आपने चुना है ताकि मैं विश्वास के एक अच्छा संघर्ष लेकर के आगे बढ़ूं। எந்த காலத்திலும் எல்லா சூழலிலும் உம்மை விசுவாசித்து நித்திய ஜீவனை பெற எனக்கு கிருபை தாரும். हर पल हर समय पर चाहे कुछ भी हो जाए, सभी समय पर अनंत जीवन को मुझे पाने के लिए आप मुझे अपना करुणा को, दया को दे करके चलाए। இதற்காகவே என்னை நீ அழைத்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. इसलिए आपने मुझे इस काम के लिए बुलाए हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। தீமோத்தேயுவை அழைத்த தேவன் என்னை அழைத்திருக்கிறீர், உமக்கு ஸ்தோத்திரம். तीमुथियुस को आपने बुलाए थे और वैसे मुझे भी आपने बुलाए हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। தேவனுடைய கரம் என்னை நடத்தட்டும். प्रभु का हाथ मुझे चलाए। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन।